Now see, this equation balancing ApCN64 minus. So all atom balance both sides. Now balance by charge. How to balance by charge? Now let us do some rough work here. In order to balance by charge, do some rough work. Okay. Oxygen not balanced. Oh, then you have to balance oxygen. So this side 12 6 3 18 12 18 30. So there 30 H2O 30 H2O this side 30 water. So hydrogen you have to check. This side 60 hydrogen, this side no hydrogen. So again you have to write 30 H2O gives you Fe3 plus. This color is not good. Fe3 plus 6H2O plus 6NO3 minus. Now you check H plus. This side 60 H plus. This side no H is there. CO2 na. Oh yes. CO2 is replaced by water. This is CO2. Okay. So now this side 60 hydrogen, this side no hydrogen. In order to balance hydrogen, you have to make 60 H plus. H per rule. So 60 H plus 60 H balanced. So both side balanced. Now you have to balance by charge. This side minus 4, left side minus 4. Right side what charge? Plus 3, minus 6, plus 3 minus 6, minus 3. Minus 3 plus 60 plus 57. Array, somebody is hammering. So plus 57 right side, left side minus 4. So what to do? How to balance both electrons, both charge same? Which side how many electrons? So 57 you can make to minus 4 by adding minus 61. Isn't it? Isn't that it? Huh? 57. C plus 60 minus 6. How much? 60H plus 6 minus 6 54 plus 3 57 ना. तो 57 को माइनस 61 करने से माइनस 4 आएगा ना. तो 57 प्लस 60 इज 60 इंटू प्लस 1 कितना हो गया प्लस 60 माइनस 6 कितना हुआ. तो 54 प्लस 3 57. तो प्लस 57 को माइनस 4 करने के लिए 61 माइनस 61 करना है. तो यहाँ पे 61 इलेक्ट्रॉन करना है. ओके. So this half is complete. Some student will do 53 minus 53 they will do. Some student will do minus 53. Is it accepted? Tell me. If you do 53, this side plus 4. Plus 4 is equal to minus 4. Same. So some student do like this. So take care. So now this is 5 electron, this is 61 electron. What to do? What multiplication factor is required to be multiplied? This into 61, that is into 5. So 61. So final answer is what? Let us write final answer. Final answer is 61
MnO4 minus plus 61 into 8, 488. See, so much coefficient coming. H plus. So this is reactant side. Electron don't write. Plus 5, 5 ApCN6 4 minus plus 150 water. 150 water. This is your reactant side. Product side, let us check. Product side 61 Mn2 plus 61 Mn2 plus हाँ बाहर, हाँ बाहर और रनने से लिखने से ठीक, ठीक है। तो ये हो गया। तो 61 इंटू 4 कितना हो रहा है? 244। 244 H2O हो गया प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 30 CO2 प्लस 30 NO3 माइनस प्लस 300 H प्लस। क्लियर? now now you take the H plus extra is there, 300 H plus and 488 H plus. What can you write? बोलो। hmm. तो we can make 188 को 300 को 1 488 minus 300 188 H plus. Okay, and water also you take 150 water is 244 minus 150 94. Rest all this space is not there, so I cut like this. In your school you don't cut like this. If you cut like this, your school teacher will think that you want to delete this answer, so you are cutting, so teacher will give you 0 marks even you make it correct. Okay, so in school exam you take care, you have to do step by step, but in entrance exam you directly write the equation, doesn't matter, final answer should be correct. So this is done, understood all of you understood, सब लोग समझ गए? So I am going to next page. You have taken screenshot or I'll send you screenshot, don't worry, just you understand the concept, कुछ मत करो, concept समझ जाओ, उसका screenshot में भेज दूंगा बाद में। तो next page I am going. So next page is balancing in basic medium. Basic medium balancing. तो बेसिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, OH माइनस और वाटर लेते हैं, ठीक है। we take OH minus and water, we should use light color. So dark color means this. So basic medium means OH minus and water. It has two rules in addition to the remaining rules that you applied earlier for acidic medium. The two rules are changed from acidic medium. The rule number one is for balancing of oxygen. Okay, for balancing of oxygen. So for balancing of oxygen, what can you do? Rule is like that: add 2 OH minus, add 2 OH minus to the
deficient side of oxygen atom and one water to the other side, one water to the other side for each deficiency of ऑक्सीजन एटम। अगर एक ऑक्सीजन कम रहेगा तो जो साइड में कम है उस साइड में 2OH माइनस और उसका अदर साइड में 1 वाटर पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ठीक है, मतलब क्या किए देखते हैं। तो सपोज इस साइड 2 ऑक्सीजन है, इस साइड 3 ऑक्सीजन है, तो इस साइड एक ऑक्सीजन कम हो गया। तो अगर इस साइड एक ऑक्सीजन कम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो साइड कम हो गया वो साइड में हम लोग एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा करने के लिए जो साइड कम है उस साइड 2OH माइनस करना है, 2OH माइनस। ठीक है, तो अदर साइड में क्या करना है, 1 वाटर करना है। ठीक है, जो साइड में कम है उस साइड में 2OH माइनस, अदर साइड में 1 वाटर। ऐसे करने से क्या बैलेंसिंग सही आ रहा है, देखते। 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 + 1 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज व्हाट, 2, हाइड्रोजन इज 2, तो बैलेंसिंग इज करेक्ट, तो नो प्रॉब्लम। But what will happen, suppose this side is say 5 oxygen, this side 2 oxygen, so you might think that this is 20, this is 30. Okay, not like that. This side 2 oxygen, this side 5 oxygen. So if this side 5, this side 2, what to do, how to balance oxygen? 6, एक डेफिशिएंसी के लिए 2OH माइनस, इस साइड 3 कम है, एक कमी के लिए 2OH माइनस, 3 कमी के लिए 2 × 3 OH माइनस। ठीक है, तो बिकॉज इट इज 3 लेस, तो हाँ, तो 6OH माइनस एस, इसका 3H2 एस, वेरी गुड, इट इज 3H2O। सो 6OH माइनस और इसका 3H2O, इसका आधा करना है। तो ऐसे क्या हमारा काम बनता है कि नहीं, देखते हैं। तो 6 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, यस बन गया। हाइड्रोजन गड़बड़ हुआ क्या, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, यस हो रहा, काम दे रहा। तो ये रूल अप्लाई करना है, याद रखो। ओके, सही है, तो ये रूल हो गया। तो अब रूल नंबर 2 फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, ऐड 1 वाटर, एक ही वाटर टू द डेफिशिएंट साइड, टू द डेफिशिएंट साइड, जो साइड कम होगा वहां पे एक वाटर ऐड कर देना है, एंड 1OH माइनस टू द अदर साइड। ठीक है, तो जिस साइड कम है उस साइड एक वाटर ऐड करना है और अदर साइड में एक OH माइनस ऐड करना है फॉर ईच डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम, फॉर ईच हाइड्रोजन एटम लिख दो, एक हाइड्रोजन कमी के लिए ऐसे ही काम करना। हाँ, हाँ, और 2 बार समझाएंगे, चिंता मत करो। ये रूल क्या है, अगर जिस साइड हाइड्रोजन कम होगा उस साइड क्या करेंगे, हम एक वाटर ऐड कर देंगे। अगर
जिस साइड हाइड्रोजन कम है एक वाटर ऐड किए, उसका अदर साइड में एक OH माइनस ऐड करेंगे, यही रूल है। तो एक बार समझाया, दूसरे बार यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इस साइड एक कम है, तो ये बोल रहा है जिस साइड कम है वहाँ वाटर ऐड कर दो। ठीक है भाई, वाटर ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे वाटर ऐड कर दिए और उसका अदर साइड में एक OH माइनस ऐड कर देते हैं, एक OH माइनस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या हमारा काम बन गया? चेक करें। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 + 2 4, here 3 + 1 4, oxygen atom 1 1. Yes, it's working. Clear? Now suppose this side your 2 hydrogen and this side you have 7 hydrogen. So what to do? So what to do? Stand related to the Roosevelt because USA was developing a secret nuclear weapon. हाँ, जिस साइड कम है हाइड्रोजन, इस साइड 5 हाइड्रोजन कम है, 5 कम है तो 5 पानी दे दो इसको। यस, इसमें 5 पानी डाल दो और इसमें 5 बेस डाल दो बीच में। तो इससे हाइड्रोजन 7 5 12 क्या हो रहा है इसमें? 5 दूनी 10 2 12, हाँ हो रहा है। मतलब ये काम करेगा, ये रूल काम करेगा, रूल याद रखो। अब मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट में एक क्वेश्चन लेता हूँ करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा कष्ट क्वेश्चन लेंगे, डिफिकल्ट लेंगे। ये MnO4 माइनस है, ठीक है। ठीक है, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, क्वेश्चन में दिया है। ओके, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, CrOH4 एक हाफ है उसको ले लेते हैं, CrO4 2 माइनस। एक काम करता हूँ मैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तभी मजा है। इजी रहेगा तो क्या है, इजी रहेगा तो सब लोग स्कूल CBSE बोर्ड लेवल का हो जाएगा। जेई एडवांस लेवल का होना चाहिए, डिफिकल्ट ओलंपियाड लेवल का होना चाहिए। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको लेता हूँ और एक Cr2O7 2 माइनस, मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो इसका भी करते हैं, इसका जो भी है हम Cr2O7 2 माइनस हो, ये एक हाफ रिएक्शन है। दूसरा हाफ रिएक्शन क्या है, MnO4 माइनस गिविंग यू MnO2, ये दूसरा हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। हम बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन याद रखो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है फिर हाइड्रोजन को करना है। मैंने पहले सॉक्स पहनना है फिर शू पहनना है, उल्टा नहीं करना है। पहले शू पहन लिया फिर उसका ऊपर सॉक्स पहन रहा है तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है,
तो रूल को प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सी आर, पहले रूल नंबर 2 अप्लाई करो। क्रोमियम 2 है, इसमें क्रोमियम 1 है, तो क्रोमियम दोनों साइड सेम नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंसिंग स्टार्ट मत कर दो, ठीक है। तो क्रोमियम क्रोमियम को पहले बैलेंस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 सी आर ओ एच 4 माइनस हो गया। अब सी आर 2 ओ 7 2 माइनस, ये हो गया, ये हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब क्रोमियम तो बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इस साइड कितना है, 2 4 8 ऑक्सीजन है। देखो इधर इसको मल्टीप्लाई भी करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, बोलो, 7 है। हाँ, तो क्या करें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या मेथड था, एक ऑक्सीजन कमी होगा तो, हाँ हाँ, तो एक ऑक्सीजन कमी के लिए हमारा रूल था 2OH माइनस 1 वाटर। तो इस साइड 2OH माइनस कर दो, 2OH माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो सोचोगे 20 बोल के, तो गलत हो जाएगा। 2OH माइनस, राइट साइड में 1 वाटर। तो ऐसे कर रहे हैं तो चेक करना है। स्मार्ट पीपल ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग एंड कीप ऑन चेकिंग, ओके। तो चेक करते रहो ऑक्सीजन सही में बैलेंस हुआ कि नहीं। 2 4 8 ऑक्सीजन, एक 9 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 2 ऑक्सीजन, हाँ 9 हो गया, सही है, सही है फिर। तो उसके बाद ऑक्सीजन होने के बाद हाइड्रोजन देखेंगे। अगर हाइड्रोजन दोनों साइड सेम है तो करना नहीं पड़ेगा, नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सी आर ओ एच, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा चीज़ दिख रहा है, बहुत सारा चीज़ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करने से इजी क्वेश्चंस चुटकियों में कर लोगे, और इजी क्वेश्चन करोगे तो इजी में ही रह जाओगे, एग्जाम में फंसोगे। तो सी आर 2O7 2 माइनस प्लस 2OH माइनस, ये ऐसा है। हम हाइड्रोजन काउंट करते हैं, इसमें 2 है, इसमें 4 है, 2 4 8, 8 हाइड्रोजन, 2 10 हाइड्रोजन हो गया, 10 हो गया। इस साइड कितना हाइड्रोजन है, इस साइड 7 नहीं है, ये हाइड्रोजन तो नहीं है, 2 है। ओ, इस साइड 10 है, इस साइड 2 है हाइड्रोजन, लिख दो, स्टार्टिंग में लिखो, ठीक है। लिख लिख के करो, नहीं तो भूल जाओगे, नहीं तो गलत कर लोगे, यही है। तो हाइड्रोजन इस साइड 10 है, इस साइड 2 है, क्या करें, एस एस, जिस साइड कम हो गया उस साइड उतना वाटर ऐड करेंगे, और उसका अपोजिट साइड 8 OH माइनस, ठीक है। इसको 8 वाटर कर दो, इसको 8 OH माइनस कर दो, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस कर लिए, तो बैलेंस हो गया, सही है, बैलेंस तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। तो चार्ज बैलेंस करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर लूँ क्योंकि स्पेस नहीं होगा फुल इक्वेशन लिखने के लिए। तो चार्ज बैलेंस कैसे करें, लेफ्ट साइड का चार्ज कितना है बोलो, लेफ्ट साइड, हाँ, लेफ्ट साइड में 2 इंटू -1, तो -2 हो गया, 8 इंटू -1 -8 हो गया, -8 -2 -10 हो गया लेफ्ट साइड का चार्ज। राइट साइड का चार्ज कितना है, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है, तो -4, माइनस, तो राइट साइड में -4 है, लेफ्ट साइड में -10 है। तो क्या करें ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, हाँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन करने से, एक इलेक्ट्रॉन मीन्स -1, तो यहाँ अगर -6 करते हैं, -6 -4 -10 होगा, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन करना है। किस साइड में करना है, राइट की लेफ्ट, राइट राइट, यस। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन करने से ये वाला बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। स्पेस कम था इसलिए मैंने और एक स्टेप नहीं लिखा, लेकिन स्कूल के एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखो, नहीं तो स्टेप मार्किंग से
फुल मार्क्स नहीं देते हैं। स्कूल के टीचर बहुत मार्क्स काट देते हैं। क्या होता है ना, बोर्ड बोर्ड एग्जाम में। हाँ, तो ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो अब इस पार्ट बैलेंस करेंगे। ये तो हुआ। शुरू शुरू में ये स्लो होगा और धीरे धीरे होगा, गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे जो मिस्टेक से कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस करने से ये एरर नहीं आएगा। अब देखते हैं, इसको बैलेंसिंग करते हैं। मैंगनीज वन, मैंगनीज वन, मैंगनीज तो बैलेंस है। अब हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें? MnO4 माइनस और MnO2 क्या करें बोलो? इस साइड 4 ऑक्सीजन है, इस साइड 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करें बोलो? ये 4। हाँ, इसमें इसमें बैलेंस करना है। इसमें 2 ऑक्सीजन कम है। एक ऑक्सीजन कम के लिए 2 OH माइनस करते हैं, तो 2 कम के लिए 2 इंटू 2 OH माइनस, तो 4 OH माइनस करना है। ठीक है, तो इस साइड 4 OH माइनस, इसका आधा 2 वाटर करना। अब देखते हैं ऑक्सीजन सही में बैलेंस हुआ कि नहीं। 4 2 6, 2 4 6, ऑक्सीजन तो हो गया। क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुआ? अगर नहीं हुआ तो करेंगे अभी। हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, हो गया तो फिर तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसमें 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन तो था नहीं, पहले से तो हाइड्रोजन था नहीं, तो फिर बैलेंसिंग जरूरत नहीं है। सही है। अब चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे करें? यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, इधर -1 है, इसको मिटा देते हैं। -1 है, इस तरफ चार्ज है -4। तो क्या करने से चार्ज बैलेंस होगा? यस, लिस्ट में -3। -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। सही है। हाँ, तो हम इसको फिर मैं लिख देता हूँ। MnO4 माइनस प्लस 2 वाटर, तो लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन कर दो, तो राइट साइड में क्या होगा? MnO2 प्लस 4 OH माइनस। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये जब आ गया, तो हम लोग इसको दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करें। कैसे करें बोलो? इंटू 2 करने से हो जाएगा। तो इसको 2 कर दो बस। इसको कुछ करना नहीं है तो 1 करो, नहीं तो मत करो कुछ भी। तो इसको करके हम ऐड कर देंगे, तो क्या आ रहा है देखते हैं। तो इसको कुछ करना नहीं है, जैसा है ऐसा ही लिख दो। ठीक है, चैटिंग प्रीवियस पेज प्लीज, रूल इन बेसिक मीडियम अगेन। अच्छा, रूल इन बेसिक मीडियम। हाँ, देख लो, इसको देखना है रूल इन बेसिक मीडियम। रूल जब लिख पढ़ाया जा रहा है, रूल लिख लो, अपना कॉपी में लिख लो, क्योंकि रूल तो याद रखना है ना। हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चले। तो यहाँ पे देखो, तो इसको
टू CrOH4 माइनस कर दो प्लस वाटर कर दो प्लस 8OH माइनस कर दो, OH माइनस को ब्रैकेट दे दो प्लस इसका रिएक्टेंट कितना है 2MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस इसमें कितना है 2 to 4 वाटर है, 4 वाटर प्लस वाटर, यहाँ 5 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे तो जैसा है ऐसा ही रहेगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 2OH माइनस रहेगा, 2OH माइनस प्लस इसमें भी वाटर आ रहा, 8 वाटर, ठीक है भाई 8 वाटर प्लस 2MnO2 आएगा, 2MnO2 आएगा प्लस 8OH माइनस आ रहा, 8OH माइनस, तो ये सब आ रहा, लेकिन हमारा 8OH माइनस तो कैंसिल हो जा रहा है, इसको कैंसिल कर दो। और वाटर इसमें 5 वाटर है, इसमें 8 वाटर है, तो इसको भी कैंसिल कर दो भाई, इसको 3 लिख दो बस। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या है, 2CrOH4 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस gives you Cr2O7 2 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस 2OH minus plus 3 water. This is the final equation. ठीक है, is it clear? तो don't worry about water given in the question, OH minus given in the question. Whatever will come automatically, that is final. It may happen that OH minus will come in the reactant side or may come in product side. Water may come in reactant side or product side, or both OH minus water may be coming in one side. Anything is possible. Now question is that uh, for same equation whether we can apply acidic medium and basic medium or only one medium we should apply. Suppose इसको हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो क्या सेम आंसर आएगा कि अलग आएगा, बोलो। यस, तो इस अगर एसिड, हाँ, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने से ये जो कोफिशिएंट है ये सेम होगा, ये कोफिशिएंट सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, खाली OH माइनस और वाटर अलग होगा, OH माइनस और वाटर अलग होगा। ठीक है, कैसे अलग होगा, एक काम करते हैं, हम दोनों साइड में H प्लस ऐड कर देते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं क्या किया 2H प्लस ऐड कर दिया, ओके, इस साइड भी 2H प्लस ऐड कर दिया, इस साइड भी 2H प्लस ऐड कर दिया। अब बोलो 2H प्लस 2OH माइनस क्या होगा, 2H2, 2H2O प्लस 3H2O कितना हो गया, 5H2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5H2। ओके, तो ये साइड में 5 वाटर हो गया, ये साइड में 2H प्लस हो गया, ये साइड में 2H प्लस हो गया, इस साइड में 5H2। एसिडिक मीडियम में ये आएगा इक्वेशन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी मीडियम से हम बैलेंस कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम से कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सही है। तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ।
तो हाँ हाँ, वाटर आएगा ऑटोमेटिकली, जो आएगा वही फाइनल है। अभी हम लोग देखते हैं अगर न्यूट्रल इक्वेशन है तो उसको हम लोग एसिडिक बेसिक मीडियम से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आयनिक इक्वेशन है तो कर लेंगे, आसान है। न्यूट्रल इक्वेशन, कोई एक न्यूट्रल इक्वेशन ले जाओ तो उसको एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे वो देख लो। वो देखने से फिर हमारा बैलेंसिंग आसान हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? तो एक कोई भी एक मैं लेता हूँ एग्जांपल। सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एसेंशियल टू, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एसेंशियल टू एसेंशियल टू प्लस केमेनोफोर प्लस HCl, ये तीन चीजें। तो इसका क्या देगा? इसका देगा एसेंशियल फोर। ओके, यहाँ पे एसेंशियल टू ऑक्सीडाइज होगा, एसेंशियल फोर देगा, केमेनोफोर रिड्यूस होगा, MnCl2 देगा, KCl आएगा और MnCl2 देगा प्रोडक्ट। और वाटर रेस्ट आएगा। ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको हम आयनिक इक्वेशन और एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये तो आयनिक नहीं है, तो इसको कैसे करें? इसको क्या करो, सबको तोड़ दो, सबको आयनिक फॉर्म में तोड़ दो, ठीक है। तो ब्रेक ऑल स्पीसीज break all species into ions. Break all species into ions except hydride, except breaking hydrogen and oxygen, except breaking हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो उसको ब्रेक मत करो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हमारा ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिसके साथ कनेक्ट रहेगा उसको ब्रेक मत करो। चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्साइड एक्सेप्ट ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, हाइड्राइड में लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एक्सेप्ट हाइड्रोजन नहीं, इसको लिखो एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राइड, ऐसे लिखो। हाइड्राइड नहीं तो हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड रहेगा तो उसको तोड़ने का जरूरत नहीं, उसको भी तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन नहीं तोड़ने से आसान से होगा, तोड़ने से मुश्किल से होगा। ओके, तो इसीलिए ये मैं लिख रहा हूँ ताकि उसको नहीं तोड़ने से भी चलेगा, बाकियों को तोड़ना है। तो इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ना है तो क्या कैसे टूटेगा? तो ये होगा Sn2 प्लस, ठीक है, और 2Cl माइनस होगा, है कि नहीं? बोलो, तोड़ फोड़ करना आता है कि नहीं? बचपन में तो तोड़ फोड़ किए कि नहीं? घर में कुछ बर्तन तोड़े कि नहीं? ग्लास तोड़े कि नहीं? तो ऐसे ही अभी यहाँ पे तोड़ फोड़ करो, ठीक है। Sn2 प्लस 2Cl माइनस, तो ये आ गया, तोड़ दिए उसको आयनिक फॉर्म में। Sn का वैलेंसी 2, Cl का वैलेंसी -1, तो Cl का -1 ये 2 है, तो इसको तोड़ दिए तो Cl माइनस हो गया, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2Cl, एक 3 है एक 3, इसका चार्ज होगा 2 प्लस। क्रिस क्रॉस मेथड से लिखा जाता है। KMnO4 का अगर तोड़ेंगे तो K प्लस प्लस MnO4 माइनस होगा। ओके, अब HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड नहीं है कि हाइड्राइड नहीं है,
ये क्लोराइड है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोराइड, तो इसको तोड़ना ही है। तो ये तोड़ने से ये आ रहा है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? प्रोडक्ट में आ रहा है SN4 प्लस प्लस 4Cl माइनस। देखो सबका स्टार्टिंग डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो गया तो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, तो इसको तोड़ दिए, SN4 प्लस 4Cl माइनस आ गया, तोड़ दिए। इसको भी तोड़ दो, K प्लस Cl माइनस, ओके, प्लस MnCl2, इसको भी तोड़ो, सबको तोड़ो। ओके, Mn2 प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस वाटर को मत तोड़ो, वाटर तो आएगा अपने आप, रखो ऐसे। ठीक है, तो तोड़ फोड़ कर दिए। ओके, मतलब हम लोग बालू से और ईंटे ईंटे से हम लोग घर बनाए थे, उसको तोड़ दिए। ऐसे समुंदर में हम लोग बनाते हैं ना, रेत से, सैंड पार्टिकल से हम लोग बहुत सारा घर बनाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, तो उससे वहाँ पे ऐसे ही हम लोग खेलते हैं। तो अभी तो बच्चे लोग वो वो सब नहीं देखें, तो तुम लोग अभी इसको ऐसे आयंस में तोड़ दो। तो नेक्स्ट में क्या करना है? नेक्स्ट में जो स्पेक्टेटर्स आयन है, मैंने दोनों साइड में सेम आयन है, तो उसको कैंसिल करना है। जो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, जो आयन्स दोनों साइड में है स्पेक्टेटर्स आयन, उसको कैंसिल करना है। देखो पोटासियम कैंसिल हो जाएगा, स्पेक्टेटर्स आयन। MnO4 माइनस कैंसिल नहीं होगा, दोनों साइड में नहीं है। SN कैंसिल नहीं होगा, दोनों साइड में जो है अंडरलाइन कर दो, तो चेंज हो रहा है। MnO4 माइनस चेंज हो रहा है, उसको अंडरलाइन कर दो। Cl माइनस है, इसमें भी Cl माइनस है, सब जगह Cl माइनस है, इसमें भी Cl माइनस है, ये भी Cl माइनस, ये भी Cl माइनस, ये भी Cl माइनस। नंबर पे मत जाओ, अगर उस वो चेंज नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे Cl2 होता तो उसको लेते, तो यहाँ पे Cl माइनस है, Cl माइनस है, तो Cl माइनस को कैंसिल हो। अगर Cl2 होता है, यहाँ पे एक Cl माइनस लेते, यहाँ पे Cl2 लेते। तो ये चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब चेंज हो रहा है। H प्लस वाटर, इसको कैंसिल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आएगा, तो इसको ऐसे ही रखो। तो फिर आयनिक इक्वेशन क्या हो गया हमारा? आयनिक इक्वेशन हो गया SN2 प्लस प्लस Mn, हाँ, MnO4 माइनस प्लस H प्लस, फिर हो गया SN4 प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस वाटर। तो ऐसे करके हम कर देंगे। ये हो गया आयनिक इक्वेशन, समझ में आ गया? न्यूट्रल इक्वेशन से आयनिक इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करना है, ये है मेथड। ठीक है, अब ये हो गया। फिर अब इसको हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। अब आयनिक इक्वेशन में बैलेंसिंग आसान होता है, गलती नहीं होगा। तो SN2 प्लस किस में चेंज हो रहा है? SN4 प्लस, सही है। तो ये एक हाफ है। दूसरा हाफ क्या है? MnO4 माइनस चेंज हो रहा है, इसमें Mn2 प्लस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, चेंज तो हो रहा। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें तो कुछ ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन है, कोई नहीं है। तीन भी एक एक है, खाली चार्ज डिफरेंट है। तो चार्ज डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, कैसे, क्या, कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देना? राइट साइड में 2, +4 -2 हो गया +2। तो ये बैलेंसिंग हो गया, कितना आसान। अब यहाँ पे देखो मैंगनीज एक है, मैंगनीज एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन लेकिन 4 हो गया, तो 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 4H2 हो गया, सही है। तो वाटर पानी दे दिए तो कुछ ऑक्सीजन हो गया। अब लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? 8H प्लस कर दो, तो इसको 8H प्लस कर दो, इसको 8H प्लस करने से ये हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मैग्नीशियम, सब बैलेंस हो गए। तो बैलेंस होने से मैं सब, अब यहाँ पे मैं सिंगल स्टेप में बैलेंसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, स्कूल में करना है। अब सिंगल स्टेप में बैलेंसिंग कर रहा हूँ। अब देखो, ये दोनों साइड में चार्ज देखना है। लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है? -1 + 8, कितना हो गया?
-1 +8 कितना हो गया, +7 हो गया। लेफ्ट साइड में +7 है, राइट साइड में +2 है, तो क्या करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे? यस, इसमें -5 करना है, तो मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कर दो। ओके, ठीक है। यस, इसको कैंसिल करने के लिए जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इंटू 5 कर दो, आप जहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है इंटू 2 कर दो। ओके, फिर ऐड कर देते हैं, तो क्या आ रहा है, 5 SN2 प्लस आ गया, प्लस और रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टेंट 2MnO4 माइनस हो गया, प्लस 16H प्लस, 16H प्लस हो गया। प्रोडक्ट क्या दिया, 5SN4 प्लस 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 2Mn2 प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2, 8H2 ये दे रहा, ठीक है। ओके, हमारा तो आयनिक इक्वेशन बैलेंस हो गया, लेकिन हमें तो न्यूट्रल इक्वेशन में चाहिए ना बैलेंसिंग। तो क्या करें, ये जो कोफिशिएंट है जहां से आया था वहां पे वही कोफिशिएंट पुट कर दो। तो ये जो कोफिशिएंट आया था 5 था, तो 5 लिख दो फिर भाई, 5 SnCl2 प्लस 2 आया, इसमें 2 लिख दो, 2 KMnO4 प्लस 16 आया, यहाँ 16 लिख दो, 16 HCl, उसके बाद ये 5 आया, इसको 5 लिख दो, 5 SnCl4 प्लस, अच्छा इसका तो कुछ नहीं है, ठीक है ऐसे ही रखते हैं, बाद में देखेंगे। 2Mn2 प्लस, तो 2 लिख दो, 2MnCl2, 8 वाटर आया तो 8 वाटर लिख दो। तो ये जो है ये फाइनल नहीं है, क्यों नहीं है फाइनल, इतना मेहनत किए फिर भी फाइनल नहीं हुआ। ये फाइनल नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। हाँ, इसमें चेकिंग करना पड़ेगा। चेकिंग में पहले जिसका ऑक्सीडेशन, लास्ट स्टेप, ये जो कोफिशिएंट आया था, ये कोफिशिएंट जहाँ से आया था वहाँ पे वो कोफिशिएंट पहुँचा दो। इसमें 5, इसमें 2 था तो 2 कर दो भाई, इसमें 16 था तो 16 कर दो, इसमें 5 5 कर दो, KCl में कुछ नहीं है छोड़ दो, MnCl2 लिख दो, H2O 8 वाटर छोड़ दो, मतलब लिखना है। तो अब कोफिशिएंट हमें चेक करना है, तो 3 5 है, 3 5 है, मैंगनीज 2 है, मैंगनीज 2 है, सही है। आप जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो चेक कर लिए। ऑल अदर कैटायंस चेक करना है, ऑल अदर आयनाइंस चेक करना है। ऑल अदर कैटायंस कौन है, पोटेशियम है, पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पे पोटेशियम, हाँ ये स्टेप मैंने कुछ नहीं किया, इसका कोफिशिएंट इस यहाँ पर लिख दिया बस। उसके बाद मैं चेकिंग कर रहा हूँ दोनों साइड में, दोनों साइड में चेकिंग में ये पाया गया कि पोटेशियम यहाँ पे 2 है, इसमें पोटेशियम 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, पोटेशियम हो गया। तो अगर पोटेशियम हो गया, उसके बाद चेकिंग करना है ऑल अदर आयनाइंस। मैंने तो एक सीक्वेंस बताया था चेकिंग कैसे करना है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर जिसका चेंज हो रहा है उसका चेकिंग करना है, ठीक है। उसके बाद ऑल अदर कैटायंस चेकिंग करना है, उसके बाद ऑल अदर आयनाइंस चेकिंग करना है, ये तरीका है। उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन चेकिंग करना है, ये तरीका है, ठीक है। हम ऑल अदर कैटायंस चेक कर लिए पोटेशियम, अभी हम चेक करते हैं ऑल अदर आयनाइंस। क्लोरीन, क्लोरीन चेक करते हैं, 5 दूने 10, 10 क्लोरीन है, 10 16 कितना हो गया, 26 क्लोरीन है, लिख दो एक जगह, भूल जाओगे नहीं तो, नहीं तो 26 को 16 सोच लोगे, गलत हो सकता है ना। 5 4 20 क्लोरीन, 20 2 22, 22 4 26, अरे किस्मत अच्छा है दोनों में क्लोरीन सेम आ गया। कभी कभी सेम नहीं आता है तो हम लोग इधर उधर करके एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे सेम हो गया, अच्छी बात है, क्लोरीन सेम हो गया अपने आप। तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चेकिंग करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 8 है, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी 8 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने 16 है, यहाँ पे 16 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप हो गया, सही है, ठीक है।
तो किस्मत अच्छा है, सब कुछ सही हो गया, राइट। अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब का बैलेंसिंग सही हो जाएगा। लेकिन ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो तोड़ो, आयनिक बनाओ, आयनिक बना के बैलेंस करो, फिर जो आएगा फिर उसका कोफिशिएंट चेंज करो, फिर उसको क्या करो, फिर उसको चेकिंग करो। इससे अच्छा होता कि इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर लेते, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और एक शॉर्टकट तरीका है कैसे बैलेंस करना है। तो केमेनोफोर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट पेज में तो ऐसे क्वेश्चन करना है और क्या। अभी मैं सब कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रैक्टिस करना है बस। तो मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ करने के लिए। हाँ, ये क्वेश्चन है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन है, मतलब वो कैसे इसको बैलेंस किया है, दिया है। तो चिंता मत करो, धीरे धीरे हो जाएगा। एक में एक डिफिकल्ट नया टाइप का क्वेश्चन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसका बैलेंसिंग देखना है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन बाय प्रोपोर्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन मीन्स डिसोसिएशन बाय प्रोपोर्शन, मतलब ये डिसोसिएट होगा कुछ रेशियो में। इस रिएक्शन का डेफिनेशन है, व्हेन सेम एलिमेंट undergoes both both oxidation and reduction in the same reaction, in the same reaction। सेम रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा तो उसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं एक आयनिक रिएक्शन दे रहा हूँ डिसप्रोपोर्शनेशन का। Br2 चेंज हुआ Br माइनस और BrO3 माइनस, ये एक आयनिक रिएक्शन दे रहा हूँ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब ये बताओ कि ये जो रिएक्शन है, Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। और Br माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बोलो, -1। तो ये 0 से -1 हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और BrO3 माइनस में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 होगा। तो +5 होगा, ये 0 से +5 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो सेम ब्रोमीन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बैलेंसिंग कैसे करें। तो एक आयनिक रिएक्शन बैलेंसिंग में कर देता हूँ और उसके बाद न्यूट्रल रिएक्शन बैलेंसिंग भी कराऊंगा, दोनों करते हैं। तो इसको कैसे करना है, इसका जो रिएक्टेंट एक ही दिया है इसको 2 बार लेना है। मतलब Br2 गिविंग यू Br माइनस, एक हाफ में ले लो, और एक हाफ में ले लो Br2 गिविंग यू BrO3 माइनस। दोनों हाफ में उसको 2 बार लेना है, तभी जाके ये बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, 2 ब्रोमीन है, इसमें एक है तो 2 कर दो, बस कम खत्म। अब ये Br2 है, अब 2 Br माइनस है, तो क्या करना है, इसमें 2 -2 चार्ज, इसमें 0 चार्ज, तो क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन करने से बैलेंस होगा कि नहीं होगा बोलो। अब Br2 गिविंग यू BrO3 माइनस, अब क्या करना है, रूल नंबर 2 तो नहीं हुआ, रूल नंबर 2 पहले करना है।
रूल नंबर 2 है 2Br O3 माइनस, हो गया, ब्रोमीन हो गया। अब ब्रोमीन हो गया तो ऑक्सीजन तो नहीं हुआ, ऑक्सीजन तो 6 हो गया। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे भाई, 2Br O3 माइनस, ऑक्सीजन 6 हो गया तो क्या करना है, 6 के लिए क्या कर सकते हैं, 6H2O होगा। तो ये 6H2O हम लोग दे दिए लेफ्ट साइड में, तो 6H2O में ठीक है ऑक्सीजन तो हो गया। तो लेफ्ट साइड में तो 12 हाइड्रोजन हो गया, राइट साइड में 12H प्लस कर देते हैं। सही है। अब चार्ज का बैलेंसिंग देखते हैं, चार्ज कैसे करेंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे, कितना देंगे। बोलो। हाँ हाँ। तो ये लेफ्ट साइड में तो जीरो चार्ज है, राइट साइड में कितना चार्ज है देखते हैं। ये तो जीरो हो गया, राइट साइड में +12 - 2, +12 - 2 +10 है। तो राइट साइड में +10 है, लेफ्ट साइड में जीरो चार्ज है। तो दोनों साइड में हमें चार्ज को इक्वल करना है, हमेशा याद रखो चार्ज को इक्वल करना है, जो हायर चार्ज है उसको लोअर करना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो माइनस है, तो माइनस ऐड करने से हायर लोअर होता है। तो इसमें क्या करो, -10 दे दो, -10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, हो गया। तो इस साइड में 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये हो गया बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग हो गया। अब ये बैलेंसिंग जब हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे, करेंगे कि नहीं। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल कैसे होगा, इसको इंटू 5 कर दो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 10 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, और क्या। तो 5Br2 आ गया, ये आ गया 5Br2। ठीक है, तो ये फिर Br2 है, ठीक है Br2। ओके, फिर 6 वाटर है, लिख दो, जो जो आ रहा है लिख दो, और 5 × 2 = 10 Br माइनस, प्लस 2Br O3 माइनस, प्लस 12H प्लस। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन हो गया, लेकिन सही है क्या, इक्वेशन क्या सही है, सही तभी होगा जब दोनों साइड में टोटल चार्ज सेम होगा। लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है देखते हैं, जीरो। राइट साइड में टोटल चार्ज कितना है देखते हैं, ये -10 -2 -12 +12, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट देगा, लेकिन उसको 2 बार लेना है, याद रखो, तब हो जाएगा बैलेंसिंग। उसके बाद तो अपना मेथड अप्लाई करो। सही है। हो गया। तो अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, चिंता मत करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। और ब्रोमीन का यहाँ पे देखो -1 है, BrO3 माइनस है, -2 हो गया, ये -2, -10 हो गया, अब ये +12। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में चाहता हूँ। ओके, तो अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, NaH2PO3, NaH2PO3, देखो जब लिखते हो ना इक्वेशन, तब सही से लिखो, PO3 को PO2 लिख दिए, NaH2 को NaH लिख दिए, तब गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंसिंग नहीं होगा, सही से नहीं होगा, आंसर गलत आएगा।
एक भी कोई गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ किताब से, मेरे को थोड़ा दिख नहीं रहा है, दूर से दिख रहा है। Na4 P2O7 P2O7 ये हो गया, प्लस PH3 प्लस वाटर प्लस NaOH, ये सब दिया है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में दिया है तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन रिएक्टेंट में एक ही है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये तो न्यूट्रल इक्वेशन है, इसको कौन सा मेथड में करना है? मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे करता हूँ। Na2PO3 जो है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है देखते हैं। ओके, तो Na2PO3 में देखते हैं, Na2PO3 लेते हैं, तो इसमें Na का जो भी है +1, H2 का +2, P का मालूम नहीं है, X ले लो। ऑक्सीजन इसमें ऑक्साइड है तो -2 इंटू 3 -6 इक्वल्स टू 0। तो X कितना आ रहा? +3 आ रहा ना, क्या +3 ना आ रहा है? तो ये +3 आया। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। तो P2O7, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, P2O7 में पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। Na4P2O7 मतलब ये P2O7 4- ऐसा है। तो इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा मैं बोल देता हूँ। तो ये 2 साल में सीख लोगे स्ट्रक्चर्स क्या होगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। धीरे धीरे सब स्ट्रक्चर्स आ जाएगा प्रैक्टिस में, चिंता मत करो, आसान। तो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है क्या? नहीं है। अगर पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है तो हम लोग इसको सब ऑक्सीजन को -2 ले सकते हैं। तो इसका हो गया +4, सोडियम का हो गया। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है, 2x लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे? -2 इंटू 7 -14, तो टोटल 0 हो रहा। तो 2x इक्वल टू कितना आ रहा? 12। हाँ, तो ये 6 हो गया। तो यहाँ से 3 से 6 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ गया। ओ हाँ 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 हाँ, सही है, सही सही है। x इज इक्वल टू +5, तो भी बढ़ रहा। तो ये +5 हो रहा, तो यहाँ लिख देते हैं +5। एक गलती होगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये केयरफुली करो। PH3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? फास्फोरस का मालूम नहीं है, हाइड्रोजन का +3 है, टोटल 0 है। तो व्हाट इज x? टेल मी, व्हाट इज x? -3 होगा कि नहीं? माइनस, तो यहाँ पे -3 हो रहा। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम तो चेंज नहीं होता नॉर्मली। तो एक में फास्फोरस 3 से 5 गया, एक में फास्फोरस 3 से -3 गया। मतलब फास्फोरस बहुत ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है सेम रिएक्शन में। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन क्या है, किस टाइप का है, उस पे हम नहीं जाते हैं, ठीक है। हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग कैसे करें, इसका स्ट्रक्चर तो पता चल गया, ऐसे होता है। तो धीरे धीरे सीखोगे स्ट्रक्चर, एक दिन में पूरा केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, ठीक है। आप देखते हैं, आप देखते हैं, आप क्या करें, इसको बैलेंसिंग करें। तो दो हाफ रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन हाफ, एक रिडक्शन हाफ ले लेते हैं। तो एक ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ जो लेंगे, तो उसको लिख दो Na H2PO3। यहाँ से क्या दे रहा? Na4P2O7 दे रहा।
है, ये सब आप रिएक्शन ठीक से लिखो। और दूसरा में क्या दे रहा, Na H2PO3, ये दे रहा PH3, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। अब इसको कैसे बैलेंस करें, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। फास्फोरस का +3 है और इधर फास्फोरस आया था +5, सही है। अब इसमें फास्फोरस था +3 लेकिन इसमें आ गया -3। अब हम लोग रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस 2 है, इसमें 1 है, तो 2 कर दो, हो गया। यहाँ पे देखो फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 करेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 में ये बोलता है कि बैलेंस चार्ज बाई ऑक्सीडेशन नंबर बाई एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो काउंट द चार्ज, चार्ज काउंट करो। यहाँ पे फास्फोरस 1 है, 3 + 3 है, 2 है, 2 इंटू +3 कितना आ गया, इसका +6 आ गया। इसको ऐसे रफ कर दो, +6 आ गया। तो इस साइड +6 आ गया, इस साइड देखते हैं कितना आ रहा है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 नहीं लेना है, क्योंकि 2 फास्फोरस, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड पर एटम, एक एटम के लिए +5 है, 2 एटम के लिए 10 है, +10। यहाँ पे +10 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, तो क्या करें, कितना इलेक्ट्रॉन किस साइड में करें, तो राइट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड में करते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो इसमें -4 हो जाएगा, तो -4 +10 +6 आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। अब इसका देखते हैं इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में देखते हैं, इसका फास्फोरस तो बैलेंस है, अब बैलेंस बाई चार्ज करते हैं। बैलेंस बाई चार्ज कैसे करेंगे, +3 इंटू 1, तो इस साइड में +3 है, राइट साइड में -3 इंटू 1 -3 है, तो +3 -3 तो इक्वल नहीं है, तो क्या करें, तो इसको अगर -6 कर देंगे हम, +3 -6 इज इक्वल टू -3 होगा, तो 6 मतलब लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे राइट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन। 6 4 का एलसीएम होता है 20 ना 12, 12 होता है ना। तो हमें मिनिमम कोफिशिएंट लेना है, ऐसा नहीं है यहाँ पे 4 लॉस हो रहा है 6 गेन हो रहा है, यहाँ पे इंटू 4 इंटू 6 करो, फिर लास्ट में कॉमन आएगा 2 कैंसिल करो, तो 2 3 3 बार लिखना क्या जरूरत है। तो इसको क्या करें, इसको 3 कर देते हैं, 3 4 जा 12, इसको 2 कर देते हैं, 2 6 जा 12, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, सही है कि नहीं, बोलो। तो इसके बाद क्या करते हैं, हाँ हाँ, बाकी एटम बैलेंसिंग अपने आप होगा, देखते हैं। ये तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं है, सभी एटम बैलेंस करना है, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको देखना है और चार्ज देखना है और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, बस। तो इसमें 6 हो जाएगा, ये हो गया 6 NaH2PO3, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया 2, तो यहाँ पे 2 हो गया NaH2PO3 आ गया। उसके बाद 3 3 Na4B2O7 आ गया, प्लस 2BH3 आ गया। तो ये तो इसका आ गया, और जो जो क्वेश्चन में जो बच गया उसको भी लेना है। तो ये सब है, ये इसमें वाटर बचा है तो वाटर भी ले लो, और NaOH बचा है तो NaOH ले लो, ओके। ये सब तो ले लिए, सही है, लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है चेकिंग करना है हमें। तो चेकिंग का रूल क्या है, चेकिंग का रूल सीक्वेंस क्या है, चेकिंग का 4 ही सीक्वेंस है, ओके। क्या क्या 4 सीक्वेंस है, तो 4 सीक्वेंस फिर मैं यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 सीक्वेंस क्या है, किस ऑर्डर में चेकिंग करना है। तो पहले चेकिंग करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, दूसरा चेकिंग करना है ऑल कैटाइंस, अदर कैटाइंस, फिर तीसरा चेकिंग करना है अदर आयनाइंस,
एंड लास्ट में चेकिंग क्या करना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चेकिंग करना है। तो ये चेकिंग करना, ऑक्सीडेशन नंबर किस किस का चेंज हुआ, फास्फोरस का ही चेंज हुआ था। फास्फोरस देखते हैं, किस्मत अच्छा है तो फास्फोरस बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए तो हम लोग इतना काम किए, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के 6 फास्फोरस 2 फास्फोरस 8 फास्फोरस, 3 2 जा 6 फास्फोरस प्लस 2 8 फास्फोरस तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हो गया। आप कैटायंस देखेंगे, कैटायंस में कौन आता है, सोडियम आता है, 6 सोडियम 2 8 सोडियम, इसमें 12 सोडियम हो गया और ये एक्स्ट्रा है। हाँ, अब प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, NaOH क्या रिएक्टेंट साइड में होगा, शायद NaOH रिएक्टेंट साइड में होगा, इसलिए नहीं हो रहा। हाँ, NaOH रिएक्टेंट साइड में, देखो कितना फालतू क्वेश्चन दिया। NaOH रिएक्टेंट साइड में है, तो आंसर में रिएक्टेंट साइड में दे रहा। अच्छा, NaOH को हम लोग रिएक्टेंट साइड में लेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ये रिएक्शन मेरा याद था, तो मेरा फिर याद आ गया। तो इसको हम प्रोडक्ट में नहीं लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो बैलेंस नहीं होगा। अगर इक्वेशन गलत है तो बैलेंस कैसे होगा, इक्वेशन सही होना चाहिए। ओके, तो एक्चुअली ये जो NaOH है ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ था। तो ये NaOH यहाँ था, यहाँ पे NaOH लिखते हैं फिर। अब देखो 12 सोडियम हो गया, इसमें 6 2 8 हो गया, तो 4 करने से हो जाएगा नहीं, तो 4 NaOH करने से 8 4 12 हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। तो ऑल अदर कैटायंस हो गया, ऑल अदर फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, और बचा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसको पहले चेक करेंगे, जो कम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चेक करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 दूने 12 है, 2 दूने 4 है, 12 4 16, 16 4 20, तो हाइड्रोजन इस साइड में 20 हो गया। तो राइट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, यहाँ पे 6 2 3 6, हाइड्रोजन यहाँ तो नहीं है। हाँ, यहाँ इसको मिला के 8 है, तो यहाँ पे 6 है। इसमें अगर 7 करते हैं, 7 दूने 14 प्लस 6 20 हो रहा है ना। इसको अगर 7 करते हैं, 7 करने से हाइड्रोजन 14 प्लस 6 20 हो रहा है, इसमें 4 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 12 20 हो रहा है हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लास्ट में ऑक्सीजन बचा है, तो हमारा ऑक्सीजन लास्ट में बचा है, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। देखते हैं वो है कि नहीं, अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमारा इक्वेशन बैलेंसिंग मेथड गलत है, कहीं ना कहीं एरर होगा। ऑक्सीजन देखते हैं, 6 3 18, 18 6 24, 24 4 30, ऑक्सीजन हो गया 30। तो इस साइड ऑक्सीजन देखते हैं, 7 3 21, हाँ 28 होगा। ऑक्सीजन 6 3 18, 18 6 24, 24 4 28, तो 28 हो रहा, इस साइड 28 हो रहा, इस साइड देखो 28 है, तो आ गया, तो हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या है, प्रैक्टिस का ऊपर है। तो क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, विथ पेशेंस प्रैक्टिस करो। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा वो मेरे को पूछ लो, मैं क्लास में करा लूंगा, नहीं तो मैं बैलेंसिंग करके वीडियो बना के भेज दूंगा। ओके, तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओके, और टाइम कम है, तो फिर नेक्स्ट में स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो स्टोइकियोमेट्री में हमारा बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है, एक है मोल कॉन्सेप्ट, एक है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो कुछ बेसिक फॉर्मूला है,
वो याद कर लो, बेसिक फॉर्मूला जानते हो कुछ लोग पहले से मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स बनाए हैं, 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला ले लो और उसका जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड में बताऊंगा। फॉर्मूला तो मिल जाएगा, बुक से मैं भेज दूंगा, फिर भी मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग 1 मोल जो लेते हैं ना, 1 मोल, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। पहले हम लोग 6.023 लेते थे, हम जब पढ़े थे 623, लेकिन रिसेंट डिस्कवरी बोल रहा है इतना होगा उसका एग्जैक्ट वैल्यू, एनसीईआरटी बुक में दिया है, 2006 में चेंज हुआ। ये होगा 1 मोल मतलब इतना नंबर। इतना नंबर क्या है? ये एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है। जैसे 1 डजन 12 नंबर होता है, ओके। तो ऐसे ही 1 मोल मतलब इतना नंबर होता है। तो सपोज 1 मोल ऑफ हम लोग कोई ले लिए, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन गैस। तो इतना मॉलिक्यूल होगा, इतना मॉलिक्यूल्स होगा, सही है। तो ये मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर है, तो इसलिए इतना मॉलिक्यूल है, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसको हम N0 कोई बुक लिखता है, कोई बुक NO लिखता है, कोई Na लिखता है, ऐसे करके। तो ये सिंबल से हम लोग इसको डेजिग्नेट करते हैं। तो 1 मोल O2 मीन्स इतना मॉलिक्यूल है। तो कितना एटम्स होगा बोलो, हाउ मेनी एटम्स? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है, तो इतना मॉलिक्यूल में इंटू 2 एटम्स होगा, ये एटम्स है। और ये रूल है, इतना अगर मोल लोगे, 1 मोल इज ग्राम मोलर मास। ये जानते हो कि नहीं, ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास होता है 1 मोल। ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम मोलर मास जो है वो क्या है, वो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है। ग्राम मॉलिकुलर मास होगा 16 इंटू 2 32, तो ये होगा 32 ग्राम, ठीक है। तो ये 1 मोल का कॉन्सेप्ट है। 1 मोल को हम लोग बोल सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 1 मोल को 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स होता है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 ग्राम एटम्स, ओके। 1 मोल मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ऐसे नहीं 1 मोल मतलब number of molecules present in 1 gram, no, 1 gram molecule means 1 mole, remember 1 gram molecule is always 1 mole is equal to 2 ग्राम एटम्स, ठीक है। अब 1 मोल को अगर 1 मोल मॉलिक्यूल को अगर एसटीपी कंडीशन में रखोगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 22.4 लीटर गैस आएगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एसटीपी में होगा, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मोल, ओके। तो सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 मोल C6H12O6 ले रहे हैं, तो इसमें कितना होगा, इसमें होगा एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसमें कितना कार्बन एटम होगा, 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्लस कितना हाइड्रोजन एटम्स होगा, 12 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और उसमें कितना ऑक्सीजन एटम्स होगा, 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ये होगा, ओके। तो 1 मोल ये तो सॉलिड है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी नहीं आएगा, इसका वॉल्यूम होगा डेंसिटी इंटू मास, ओके ना। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है, मास बाय डेंसिटी होगा। तो ये एटम्स हो गया, तो इसका क्या होगा, इसका ग्राम मोलर मास कितना होगा। ग्राम मोलर मास देखेंगे तो 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12, एटोमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस
12 into atomic mass of hydrogen 1 plus 6 into atomic mass of oxygen 16. तो टोटल कितना आ रहा है बोलो? कितना आ रहा है? 180, तो 180 ग्राम होगा। ठीक है, तो इसका तो हाँ ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं इसको, 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ओके, इसका वॉल्यूम नहीं होगा। ओके, तो इसमें और कुछ फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू weight of a substance, weight of a substance in gram, weight of substance in gram divided by gram molecular mass. ओके, ठीक है। अगर ये एटॉमिक फॉर्म है तो ग्राम एटॉमिक मास होगा, अगर मॉलिकुलर फॉर्म में ग्राम मॉलिकुलर मास होगा। ओके, तो और अगर इसको लेना है एटॉमिक फॉर्म तो वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है उसका ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसे लेना है इसको। ओके, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी बाय आर टी। पी क्या होगा? प्रेशर ऑफ द गैस, बी वॉल्यूम, पी प्रेशर ऑफ द गैस, बी होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस, आर होगा आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स, इससे आएगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, weight of substance is equal to number of moles into ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख सकते कि नहीं बोलो, टेल मी। हाँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसी से भी आएगा। या वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास, ये भी ले सकते हो। या वेट अगर एटॉमिक फॉर्म है तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास भी होगा। तो वेट इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ एटम्स भी हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल होगा। नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला होगा बोलो? अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? ये फॉर्मूला सब मालूम है, तो ये लोअर क्लास में पढ़े हो और इसको अभी अप्लाई करना है हम लोग। तो नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर ये होगा हमारा क्या? ये होगा ग्राम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स। या इसको ले सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर वो मॉलिकुलर फॉर्म में है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, ये भी नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा
नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो इसको हम लोग ले सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने n ले लिया, स्मॉल n। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला है। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला भी हम कहीं से भेज देंगे, सब फॉर्मूला है। अभी मेरा याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पेज में चलें। यहाँ तक हो गया लिखना? ओके, तो सबका हो गया, तो नेक्स्ट पेज में चलें। तो फिर अभी देखते हैं फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला है हमारा मोलारिटी, तो इसको मैं डिराइव करना चाहूँगा। तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present number of moles of solute present in 1 liter of solution in 1 liter of solution is known as molarity, is known as molarity। तो मोलारिटी मतलब कितना मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में है, उसको मोलारिटी बोलते हैं। ठीक है, अब मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करें हम? तो मोलारिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय ग्राम मोलर मास और ग्राम मोलर मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, तो अगर हमारा V वॉल्यूम में सॉल्यूशन है, V लीटर में सॉल्यूशन है, 1 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में उसका मोलारिटी होगा नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। मतलब n मोल अगर V लीटर में है तो 1 लीटर में कितना होगा? n बाई V होगा। सही है, V इन लीटर। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाई V इन लीटर, ये हो गया मोलारिटी। लेकिन सपोज V इन ml दिया है तो फॉर्मूला चेंज होगा, W बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय V इन ml। ओके, ये मोलारिटी का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग ऐसे ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हो गया मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये हो गया यहाँ से। अब नंबर ऑफ मोल्स इज मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब अगर इसको मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर के जगह वॉल्यूम इन ml कर देंगे, मतलब ये वाला वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है? वॉल्यूम इन ml बाई 1000 होता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 10⁻⁻3, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। इज दैट क्लियर? ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी से आएगा, वेट से आएगा, नंबर ऑफ एटम से आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आएगा। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मैंने बताया था कि नहीं? देखते हैं। हाँ,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बताया। ठीक है, तो सब फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री मतलब कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर दिया है, मान लो क्वेश्चन एक में सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ मैं। 12.25 ग्राम of KClO3 is strongly heated. 12.25 gram of KClO3 is strongly heated. ठीक है, till we get a constant residue. Calculate weight of O2 gas produced. Calculate the weight of जो O2 गैस प्रोड्यूस हुआ उसका वेट कितना है, ये पूछा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा जो है, हमारा 3 स्टेप है। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो 3 स्टेप्स आर देयर, 3 बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है उसका इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो और उसके बाद कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो उसका इक्वेशन क्या होगा वो मालूम होना चाहिए। तो इक्वेशन कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है। हाँ, तो ये सिंपल सा इक्वेशन है। आंसर आ गया इतना जल्दी? अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो इसको बैलेंस करना है, पहले इक्वेशन लिखो KClO3 गिविंग यू KCl प्लस O2। तो इसको बैलेंस करो, इसको 2 दे दो इधर, इसको 2 देने से इसको भी 2 आएगा, इसको 3 आएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग इक्वेशन है। तो इसको बैलेंसिंग इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कैसे सॉल्व करते हो, कितना टाइम लेते हो सॉल्व करने के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड कितना मेथड जानते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको कोई भी मेथड करो एक ही टाइम लेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा लंबा होगा, लेंदी क्वेश्चन होगा, तो डिफरेंट मेथड में डिफरेंट टाइम लेगा सॉल्व करने के लिए। तो मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। स्टोइकियोमेट्री में हम लोग कोई भी क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मेथड नंबर 1 है यूनिटरी मेथड। ओके, तो मेथड नंबर 1 क्या है? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो, किसका किसका दिया है। KClO3 दिया है और O2 दिया है, तो इसका 2 मोल लेने से इसका 3 मोल आएगा। इसका अगर हम लोग 2 मोल लेंगे, इसका आएगा 3 मोल। 2 मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा देखते हैं। इसका अगर कैलकुलेट करोगे 122.5 होगा। इसका 3 मोल का कितना होगा? 3 इंटू 32 ग्राम होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है। ओके, सही है। अब इतना लेने से इतना आ रहा है, क्वेश्चन में ये दिया है O2 पूछा है, तो इतना ग्राम लेंगे तो इतना ग्राम आएगा। तो अगर 1 ग्राम लेंगे तो कितना आएगा? सबको यूनिटी में कन्वर्ट करो, यूनिटरी मेथड। तो ये होगा 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 122.5, इतना ग्राम आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 12.25 ग्राम। तो 12.25 ग्राम देने से ये कितना आएगा? ये आएगा 3 इंटू 32
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 122.5 इंटू 12.25। तो इसको सॉल्व करने से ये आएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसका कैलकुलेशंस। 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 122.5 इंटू 12.25। तो ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया। तो 10 आ गया, ये हो गया 16, 48/10, ये हो गया 4.8 ग्राम। तो 4.8 ग्राम हो गया हमारा आंसर। क्या समझ में आया कि नहीं? तो ये यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या मेथड से कर सकते हैं। तो हमारा क्या था, KClO3 था, 2 था, और 2KCl आया था, और क्या बना था, 3O2 बना था। हम इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, वो है मोल कॉन्सेप्ट मेथड। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट मेथड में क्या दिया है उसका मोल निकाल दो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 निकाल दो। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। तो उसका वेट कितना दिया है, 12.25 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है इसका, 122.5। तो कितना मोल है, 1/10, 0.1। तो 0.1 मोल हमारा KClO3 दिया है। ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, 2 मोल KClO3 क्या देता है, 3 मोल O2 देता है। तो इसका 0.1 मोल कितना देगा, 3/2.1, मतलब कितना आएगा, 0.15 मोल। ठीक है। तो O2 का मोल आ गया, O2 का मोल आ गया। तो O2 का वेट पूछा है, तो O2 का वेट पूछा है, तो कैसे आएगा, तो वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मोलिकुलर वेट, जो कि फॉर्मूला मैंने बताया। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.15। ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है इसका, ऑक्सीजन का 32। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 ग्राम आएगा। ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, बोलो। देखो, यूनिटरी मेथड में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो और सबको यूनिटी में कन्वर्ट करके कन्वर्सन करो। मोल कॉन्सेप्ट में सबको मोल में कन्वर्ट करो और मोल के हिसाब से कन्वर्ट करो। ये मोल कॉन्सेप्ट मेथड है। क्वेश्चन यूनिटरी से भी कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। आंसर सही आना चाहिए, जल्दी सॉल्व होना चाहिए, ये हमारा एम है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूं, थर्ड मेथड पे जाता हूं। थर्ड मेथड एक है प्रोपोर्शनैलिटी मेथड। थर्ड मेथड है प्रोपोर्शनैलिटी मेथड। प्रोपोर्शनैलिटी मेथड क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लो बस। हम लोग क्या क्या रिलेशन देख रहे हैं, KClO3, 2KClO3 गिविंग यू 3O2। तो इसका वेट रिलेशनशिप है। ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, वेट रिलेशनशिप।
तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका क्या दिया है, 2 इंटू 122.5 ग्राम, ये दिया। इसका कितना आ रहा, 3 इंटू 32 ग्राम आ रहा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन में हमारा ये दिया कितना है, 12.25 ग्राम। तो ये कितना आएगा, x ले लो, तो इसको डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू ये आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको ऐसे कर दो, तो दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, so 12.25 also directly proportional to x, so this by this is equal to this by x। ओके, तो इसको डिवाइड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इससे x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 32 इंटू 12.25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 122.5, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा भी 4.8। ठीक है, हाँ। तो तीनों मेथड्स है, तीनों मेथड में जो आज आसान लग रहा है वो मेथड अप्लाई करो, क्वेश्चन लेकिन सॉल्व होना है। लेकिन सब क्वेश्चन में सब मेथड काम नहीं करेगा, याद रख लो। ठीक है, अभी एरोप्लेन नहीं चल रहा है, अभी हम लोग जाने के लिए पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, फोर व्हीलर से जा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज लॉकडाउन हो गया, व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, तो मोटर व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, तो क्या करोगे, साइकिल में जाओगे, नहीं तो पैदल जाओगे, है कि नहीं। तो कोई क्वेश्चन के हिसाब से हमें मेथड्स अप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चन सब मेथड से हो सकता है, कुछ क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर मोल कॉन्सेप्ट मेथड से इजी होगा, तो मोल कॉन्सेप्ट मेथड से कर सकते हो। प्रोपोर्शनलिटी मेथड कम टाइम में हो जाएगा। ओके, तो कंप्लीटेड। तो अभी और एक क्वेश्चन में देता हूं करने के लिए। तो क्वेश्चन करने के लिए ये वेट वेट रिलेशनशिप हम लोग देख लिए, तो वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप देखते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है 1.58 ग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, 1.58 ग्राम ऑफ केमेनोफोर is treated with excess of HCl, treated with excess of HCl. Find the volume of Cl2 gas produced. Volume of Cl2 gas produced at STP. कितना Cl2 गैस प्रोड्यूस होगा STP में, वो कैलकुलेट करना है। ये कर सकते हो कि नहीं? तो करो, आंसर बताओ। वन 158। तो पोटेशियम का 39 है एटॉमिक वेट, मैंगनीज का 55 है, ऑक्सीजन का 16 है एटॉमिक वेट।
तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, सबसे करेक्ट केमिकल इक्वेशन चाहिए। ओके, हाँ, तो ये इक्वेशन है KCl MnCl2 Cl2 वाटर, ये इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करें बोलो? बैलेंसिंग कर लोगे ना अपने आप? यस यस, वेरी गुड। यस, इतना जल्दी कर लिया। 5 Cl2 8 H2, ठीक है, देखो कितने फास्ट। तो ये बैलेंसिंग हो गया। बैलेंसिंग होने का बाद फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इसको मोल कॉन्सेप्ट मेथड से कर रहा हूँ, कोई भी मेथड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मोल कॉन्सेप्ट मेथड से मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो केमेनोफोर दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमेनोफोर कितना है? वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका वेट है 1.58। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 158। तो कितना हो रहा है? 0.01 मोल आ गया। नहीं, बोलो। एस नहीं होगा। ठीक है, तो ये 0.01 मोल आ गया केमेनोफोर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्लोरीन कितना निकलेगा? हम लोग क्या जानते हैं? 2 मोल ऑफ केमेनोफोर gives how many moles of chlorine gas at STP? 5 moles, 5 moles दे रहा Cl2 गैस। तो ये अगर 0.01 मोल होगा तो क्लोरीन कितना निकलेगा बोलो? इतना निकलेगा ना। हाँ, तो देखते हैं, मेरे को याद नहीं है आंसर। तो 5/2 इंटू 0.01 मोल कितना वॉल्यूम होगा? इंटू 22.4 कर दो, तो ये आ जाएगा 11.2। ये 5 मल्टीप्लाई करो, 0.01 करो, 0.112 इंटू 5 कर लो। हाँ, 0.56 लीटर सही है। जो कोई भी 0.56 लीटर निकाला वही सही है। हाँ, वेरी गुड। तो 0.56 लीटर इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। आप बोलोगे सर मैं प्रोपोर्शनलिटी मेथड से करूंगा। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट मेथड से मैंने किया। कोई भी मेथड से करो आंसर आएगा। प्रोपोर्शनलिटी मेथड से मैं करूंगा। ठीक है, करो। पहले रिलेशन क्या है ये एस्टेब्लिश करो। ये है वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो ये कितना है? 2 × 158 ग्राम लेने से क्या आता है? 5 × 22.4 लीटर आता है। इतना ग्राम लेंगे तो इतना आएगा। तो हम लोग क्या लिए? 1.58 ग्राम लिए। तो कितना आएगा? एक्स ले लो, डिवाइड कर लो, तो फिर एक्स कितना आएगा देखते हैं। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेशन करना है। 5 × 22.4 इंटू 1.58 डिवाइडेड बाय 2 × 158, तो ये हो गया 100। ये हो गया 11.2। ये हो गया 20। तो 11.2/20 कर लो, 0.56 लीटर आएगा। ठीक है,
तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो कंप्लीटेड। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास क्लोज करता हूँ। राइट, तो अभी जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट कर लो। ओके, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं फिर इसका क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस, और फिर नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। ओके, तो फिर मंडे को फिर क्लास करते हैं। राइट, ओके, बाय। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।